Hello students, this video is regarding the analysis or the answers of the exam which was held today, and some students appeared online and some students appeared offline as well. So there were two sets, as all of you are aware. I'll start with set A and then we will move on to set B. We all are aware about the blueprint. Still, I'll just be explaining in between that what should have been the ideal answers. It is not like what I am saying will is the only answer, and CBSE do follow the rule that some answer keys provided and other logics, other reasons, other answers which are correct are also given full marks or relevant marks. It is not like the answers we are discussing here are the only answers. In some cases this is true that those are the only answers, but in some cases this is not true. There may be some other answers as well. So first I will start with set A, as I just told you, and then we'll move on to set B. So this is set A, and first question was wealth is a blank concept, and whereas the capital formation is a blank concept. We all know wealth is a stock concept because stock variable refers to a variable which do not consider the time period. So wealth comes into this category, whereas capital formation is an ongoing process. Capital formation is not a one time process or is a one time movement. It keeps on happening throughout the year, so it is measured over a period of time. It is a flow concept. Second question, NIT and subsidies given, and examiner has asked us to calculate indirect tax. So NIT is equals to indirect tax minus subsidy. So IT will be NIT plus subsidy. So 200 plus 40 is equals to 240. C option is correct. Now third question is regarding the change in repo rate or margin requirement in the present COVID-19 times. Many economists raise their concern that Indian economy may have to face a deflationary situation and all that. So in all the situations which are related to deflation, we decrease all these rates. So answer will be decrease in the margin requirement. We all know that bank rate, margin requirement, CRR, SLR, all these are decreased during deflationary situation and increased during inflationary situation. So we will decrease this margin requirement. So answer will be decrease. Now in fourth question, four options are given, and examiner asked us which one of these is true. We need to read one thing here. I need to mention, we need to be very aware that whatever instructions are given, we have read all the instructions thoroughly. So like it is, we need not to find the false sentence here, we need to find the true sentence. And according to the different foreign exchange rate systems, answer A is the correct answer, meaning under fixed exchange rate government need to maintain large stock of foreign exchange reserve. Now question number fifth, TCS Limited receives money from Apple Inc., New York on account of sale of its building. This transaction would be recorded on which side of which account? So basically what we are dealing in is money. Asset is changing hand. Okay. So this will be a capital account, and because it is inflow of money, TCS Limited is an Indian company. So answer will be third, credit side, because whenever there is inflow of money, it is credit side, and because we are dealing in asset, so it is like capital account. So correct answer will be C option. Now question number 6, which of the following measures is used to measure money supply in India? So generally we, as we have discussed in the class many times as well, M1, M2, M3, M4, all of these are used, but in our syllabus only M1 exists. So some of you might have written M1 as the answer, but it is not the correct answer. M1, the detailed explanation of M1 is in our syllabus, but Indian government uses all four, M1, M2, M3, M4. So all of the above is the answer of question number 6. Now question number 7. I'll just be reading all the questions, so it makes it easier for you. There is a paragraph related to Keynesian theory of multiplier,
and some questions, question number 7 to 10. So first thing first, this paragraph type, like this type of questions have been introduced in economics of grade 12th first time by the board CBSE. So question number 7, this investment multiplier is denoted by, we all know answer is C, K. Then question number 8, if MPC is equals to 3 MPS, the value of multiplier will be, multiplier is 1 upon 1 minus MPC, or 1 upon 1, K is equals to 1 upon MPS. So answer will be B, means question number 8, answer will be K is equals to 4, B option. Now question number 9, the size of multiplier or the range of multiplier is between 0 and infinite, which is false, because the range of multiplier is always between 1 and 0, not infinite. Question number 10, supply of money refers to currency held by the public and, means M1 is equals to CC plus C plus DD. So C is given in the question, currency held by the public. DD is demand deposit. So answer will be option D, demand deposit. Now question number 11, 12, as we know, both of these questions are of 3 marks. So question number 11th may state giving valid reasons whether the following statements are true or false. State giving valid reasons. We have discussed it so many times that in these true false questions or defend or refute questions, if we will not provide the correct logic or correct reason, then no mark will be given by the examiner. So because examiner wants to check whether we are clear in our fundamentals or not, whether we know the fundamental of that topic or not. So reason is always asked, as is in this question, state giving valid reasons. So I'll be moving on to question number A. Demand of domestic goods and domestic demand of good is one and the same thing. As we know, this is false, because demand of domestic good means demand of domestically produced good all over the world, whereas the domestic demand of good means demand of all goods demanded by the citizen of a country, but that good can come from anywhere around the world. So both of these are not same, and answer is false. Now B, final goods are always durable in nature. Final goods are not always durable, because durable means which can be used for long time. I purchases milk, vegetable, fruit, which are final good for a household, but they are not used for 1 year or 2 years. Vegetable we purchase in the morning, used in afternoon, purchased in afternoon, used in evening. Same for so many other things. So answer will be false. Question number 12, same, state giving valid reasons whether the following statements are true or false. So question number 11, both answers are false. Capital account in balance of payment records only borrowing from abroad and lending to abroad. It does not only includes borrowings, it also records money received from sale of asset and repayment of loan as well, and many other transactions as well. Means it just did not records only borrowings, it records investment as well. So answer is false. Now B, import of machinery from abroad are recorded in the capital account of the BOP on the debit side. Answer is false, because machine is a visible item, and visible items are recorded in current account. Although side is correct, but account is wrong. So answer will be false, because machine is a good, is a visible item, and dealing of visible items is recorded in current account. अब इसका और क्वेश्चन देखते हैं 12th का. Trade surplus may exist if a country is facing a situation of current account deficit. Defend or refute the statement with valid arguments. समझ रहे हैं? हाँ, तो with valid argument, but we will defend this statement, meaning we can say in other language, might examiner might ask this question in true or false as well, that trade surplus exists in a country
facing a situation of CAD or current account deficit. This is true because trade deficit involves not only dealing in goods but also dealing in services and unilateral payments. So if we are receiving money from abroad like remittances, or we are receiving money because we have rendered a service, in this situation trade surplus will exist with the situation of current account deficit. Clear? So trade surplus may exist with current account deficit as well, because we do not only record the items, visible items, but we also record transactions related to services and unilateral transfers or unilateral payments. Now question number 13, इसमें हमें बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का जो रोल था आरबीआई का वो एक्सप्लेन करना है. एंड central bank, as we all know, is bankers bank or is the head of all the financial institutions including bank as well, or controls the financial system of a country. So there are usually many banks in a country, or RBI works as a regulator, RBI supervises their functioning, and all these things are the duties of RBI. But we will be breaking them into 3 points. और देखिए यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, एक में हमने एक पॉइंट का हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, ऐसे हमने ध्यान रखना है इन चीजों को. इंट्रोडक्शन लिखा हमने, एग्जामिनर ने हमें 1 नंबर दे देना है. Like I'll just read out, I'll forwarding this marking scheme as well. There are usually hundreds of banks in a country, and there should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. This duty is discharged by the central bank or RBI. अब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हमने उसे 3 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया. तो हमेशा ध्यान रखें, इस चीज की कोशिश करें कि if a question is asked in 3 or 4 marks, so if we can distribute the answer in 3 or 4 valid points. ऐसा नहीं कि बिना बात इधर की उधर की हमने बातें लिख देनी है, एक ही बात को बड़ा चढ़ा के लिख देना है, ऐसा नहीं करना है. जो भी हमारा वैलिड आंसर है, जो भी वैलिड हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उन्हें अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, याद रखिए इस बात को. इट इज अ टिप लाइक हाउ टू स्कोर वेल इन एग्जाम, उसमें भी ये टिप आपको मिलती है जब आप कभी किसी वीडियो में देखते हैं या किसी डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं, तो ये टिप उसमें भी लिखी रहती है. विल डिस्कसिंग हियर कि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट में बना के लिखें. 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, आंसर को हमने 4 पॉइंट में लिख दिया. चलिए खैर, मैं वापस आता हूं इस आंसर पे. सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर्स बैंक इन 3 कैपेसिटीज. कौन सी हैं? इट इज द कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व. Banks of the country are required to keep a certain percentage of their deposit with the central bank. क्या है ये? CRR. And in this way, the central bank is the ultimate holder of the cash reserve of commercial banks. As a security, जितना भी पैसा बैंकों में जमा होता है, उसका कुछ परसेंटेज RBI के पास हमें रखना जरूरी होता है. CRR बोल सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है. सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. मींस किसी भी बैंक को किसी और जगह से फंड नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखकर, या ट्रेड बिल्स जो होते हैं उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखकर पैसा ले सकता है, जिसे बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं. वी हैव स्टडीड दैट इन ग्रेड 11th अकाउंटेंसी एज वेल. एंड इट एक्ट्स एज ए बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर. क्योंकि सभी बैंकों का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, तो इन केस सम आर्गुमेंट अराइजेस बिटवीन 2 बैंक्स, देन आरबीआई कैन इजीली लुक इनटू द मैटर एंड सेटल द मैटर with the cash reserve it holds from different banks. Then question number 14 है बेटा, इसमें हमें एक इक्वेशन दी है, s is equal to -200 plus 0.5y and investment expenditure is 400. अब क्वेश्चन क्या है? This is the information. Is the economy in equilibrium at an income level of 1200 crore? तो सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि 1200 करोड़ पर सेविंग कितनी होगी हमारी. देखिए सामने s is equals to -200 plus 0.5y, फिर y को हमने 1200 से रिप्लेस किया, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 आ जाएगा, प्लस का 600 है, माइनस का 200 है, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ बेटा. जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. देखिए ये देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 600, ये आ जाएगा यहाँ पे 600, ये
1200 प्लस 0.5, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 600 हो जाएगा, माइनस 200 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा बेटा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो S इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी लिख सकते हैं, यहाँ पर S आना चाहिए, ये C लिखा हुआ है, it should be S. S is equals to y minus C. Y is given in the question 1200. C is सॉरी यहाँ पे S आना चाहिए बेटा, ये जो C लिखा हुआ है y माइनस S. C is equals to y माइनस S. तो 1200 माइनस 400 800 आ जाएगा, और I जो है वो 400 गिवन है, तो C प्लस I कितना हो जाएगा 800 प्लस 400 which is 1200. So we can say that economy is in equilibrium at 1200 crore, and we have proved it through this kind of equation. Okay, so this is, as you can see, correct answer. और केस में क्वेश्चन दिया है, the break even level of income in an economy is given to be 10,000 crores. If the economy saves 20% of additional income, calculate the value of autonomous consumption. Means y की वैल्यू दी है, देखिए 10,000. उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो C is equals to A plus BY या C is equals to C bar plus BY. यहाँ पे कुछ बुक्स में उसे, कुछ बुक में A से डिनोट कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इट कैन बी काउंटेड एज C bar एज वेल, और C bar की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी है, देखिए. ओके, तो 10,000 गिवन है, A हमने फाइंड आउट करना है, B 0.8 कैसे आया, B 0.8, Y तो ये 10,000 लिखना है बेटा, यहाँ पे 1,000 लिखा हुआ है, तो ये अब 0.8 कैसे आया, बस ये समझना है. अब 20% अगर सेव करते हैं चेंज्ड इनकम का, तो कंज्यूम कितना करेंगे 80%, सॉरी लाइक काइंड ऑफ नॉट, 80% अगर कंज्यूम करेंगे चेंज्ड का तो 0.8 हो जाएगा एमपीसी. C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY, B डिनोट्स एमपीसी, 0.8 इंटू 10,000 8,000, उधर 10,000 है, तो I हो जाएगा हमारा, या A हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10,000 माइनस 8,000, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,000. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. Let me remove this all. Then question number 15 देखते हैं. Current center unveils 10,000 festival advance LTC cash voucher scheme via digital transaction to revive growth. ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज लगी है और आपने पढ़ी भी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनसे कहा है कि वो अगले 1 साल में अगर कहीं भी घूमना चाहते हैं तो 10,000 रुपीज के कैश वाउचर उन्हें मिलेंगे, जिन्हें वो ऑनलाइन पेमेंट में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं. Do you think that this measure taken by the government of India to correct the situation of deficit demand during COVID-19 pandemic will revive the economy? We do agree with this. ये हम वैसे भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर 10,000 रुपीज दिए हैं तो अब ये खर्च करने हैं अगले 1 साल में, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक के फंडामेंटल से इसे डिस्कस करते हैं तो गवर्नमेंट ने ये किया है बेटा कि कंजम्पशन लोगों के हाथ में दे दिया है, लोगों की इनकम बढ़ा दी है. जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, आप कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है तो ईडी इज इक्वल्स टू C प्लस I, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, डिमांड ज्यादा जनरेट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और लोगों के हाथ में रोजगार आ जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, ज्यादा लोगों के पास पैसा आ जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करेगा और लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ जाएगी. तो वी विल सपोर्ट और डिफेंड दिस स्टेटमेंट. ऑल्दो ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन इज आल्सो रिटन, लेकिन इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि देयर इज नो वन सिंगल करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशंस में डिफर. तो यहाँ भी हमने डिफेंड ही किया है, यहाँ हमने इस तरीके से डिफेंड किया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग 4,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसबर्स करने हैं. स्टेट गवर्नमेंट भी अगर इस स्कीम को अप्लाई करती है तो 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ दे नीड टू डिसबर्स. डिस्पर्स या डिसबर्स मींस 12,000 करोड़ की एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट हो जाएगी,
उस पे जब लोगों ने परचेज करना है तो जीएसटी भी लगेगा, और जीएसटी जब लगेगा तो फिर वो फूड आइटम विच एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैश बीइंग स्पेंट ऑन फूड आइटम्स, यानी कि अगर आप उससे परचेज करते हैं तो फूड आइटम्स परचेज नहीं करेंगे। इस बात को कहने का क्या मीनिंग है आप समझिए, इस बात को कहने का मीनिंग ये है कि ये जितना भी पैसा खर्च होगा वो कैपिटल गुड्स में, ड्यूरेबल गुड्स में खर्च होगा और सॉलिड डिमांड जनरेट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A consultancy firm hires people at 10,000 rupees per month who lost their job during COVID-19. Their job is to beg at different places around the city. At different places around the city. Salaries paid to these people should or should not be included in the estimation of national income of India. Give reason. Salaries paid to these people will not be included in the national income of India because it is not a productive or economic activity. डिस्क्लेमर है, साइड में देखिए डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, बेगिंग इज नॉट अ क्राइम कैपिटल क्राइम एज पर दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि बेगिंग को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वो क्राइम नहीं है। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने टेक्निकली भी स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई बेगिंग को आप कहें कि बेगिंग कोई काम थोड़ी ना होता है, हाँ काम नहीं होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, उसके लिए हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन बेगिंग इज नॉट अ क्राइम, बेगिंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमारा पॉइंट है। बेगिंग इज नॉट एन एक्टिविटी, वो हमारा डिस्क्लेमर है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये कोई भीख मांगने का क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते हैं, उसके लिए डिस्क्लेमर है कि बेगिंग इज नॉट अ क्राइम एज पर दिल्ली हाई कोर्ट, बट वी विल नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम बेगिंग और सैलरी फ्रॉम द जॉब ऑफ बेगिंग, दोनों बातें अलग अलग हैं। जो बेगिंग करनी है उन्होंने, वो तो जिसने जो नौकरी पर रखा है उसे दे देनी है, वो क्राइम नहीं है, लेकिन जो बेगिंग के बाद उन्हें सैलरी मिली है वो बेगिंग की वजह से मिली है, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। बी पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इंक्रीज इन पर कैपिटा real income means increase in per capita availability of goods and services. Does it necessarily rise in the welfare of the people of the country? Can you give any argument, any one argument in support of your answer? Means अगर increase in per capita real income होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तभी तो रियल इनकम बढ़ेगी ना। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल इनकम बढ़ेगी। मींस इंक्रीज इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट वो देखिए रियल इनकम बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है, नई फैक्ट्री लगी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, गुड, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उससे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा, इससे हम एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, does it necessarily rise in the welfare of the people, ये क्वेश्चन है। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि रियल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इससे लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा? शुरू की दो बातों से हम एग्री करते हैं, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम मींस इंक्रीज इन availability of goods and services for the people, but it may not necessarily always be so. Why? For example, एक एग्जांपल है देखिए आपके सामने, मैन्युफैक्चरिंग or anything else does raise output but at the same time also leads to water and air pollution which reduces welfare of the people. आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, नई फैक्ट्री लगी है, लेकिन वो वाटर और एयर पॉल्यूशन भी तो करेगी, तो सच ए रिडक्शन इन वेलफेयर में आउटवे द इंक्रीज इन वेलफेयर एंड दस लीड टू ओवरऑल रिडक्शन इन वेलफेयर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, देखिए कि जो आपके प्रोडक्शन का वेलफेयर है वो कम होगा और पॉल्यूशन का जो नेगेटिव वेलफेयर या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल रिडक्शन इन वेलफेयर हो जाएगा। मींस इट ऑलवेज वेलफेयर इंक्रीज होगा रियल इनकम बढ़ने से, ऐसा नहीं होता है। रियल इनकम बढ़ने से कभी कभी वेलफेयर बढ़ता है, ज्यादातर वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन कभी कभी ये सिचुएशन भी आती है कि वेलफेयर नहीं बढ़ता है। ठीक है बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल है, इसे हम क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ जस्ट आई विल एक्सप्लेन दिस न्यूमेरिकल इनटू हियर, सो इट डजंट मेक एनी सेंस ऑल्दो एवरीथिंग इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। You can solve this after seeing this marking scheme, and if anything is not clear to you, you are more than welcome to ask me anytime. You can just send me a message and I'll explain it to everybody who is unable to understand personally. Okay,
Then we will move on to question number 17. यहाँ पर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएशन दिखाना था. तो वी ऑल नो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से नाइदर क्रिएट assets no reduces liability. Capital expenditure में इसका just opposite है, either creates asset or reduces a liability. कैपिटल सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर पीपल. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है, ये हमें एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर करना होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड बेस्ड होता है, पॉलिसी बेस्ड होता है, जरूरत पड़ने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है. वो एक साल में 100 टाइम्स भी हो सकता है, नेक्स्ट 1 ईयर में 10 टाइम्स भी हो सकता है. इट इज नीड बेस्ड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है सैलरी to the employee, government employees, pension given to the government employees, interest paid by the government on the loan taken by the government, central government की बात है यहाँ पर. इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो सकता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स और एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हॉस्पिटल एंड एनी अदर एसेट बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसका बी पार्ट क्या है देखिए, एक्सप्लेन हाउ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी. टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से आप गवर्नमेंट के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इन्फेयर कर सकते हैं, मतलब कैसे उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं. तो टैक्सेशन से बहुत आसान सा आंसर है. अगर आप ज्यादा रेट पे टैक्स लगाएंगे तो वो चीजें जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती हैं लोग उन्हें यूज नहीं करेंगे, जैसे लिकर, सिगरेट, टोबैको और लग्जरियस कार्स, वेरी हाई एंड, और स्टे इन 5-star hotels, all those things. If we will tax them at higher rates, so means government is discouraging people to use those. Okay. And the persons who are included or who are doing jobs in these sectors may kind of means job opportunities will suffer. That's the point. Then expenditure policy or direct participation in production means गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होगा. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज normally ignored by the private sector due to lack of enough profits and huge investment expenditure, like water supply, sanitation, law and order, national defense. These are called public goods. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, like I said and I'm saying it third time here, कि आपका अगर कोई और भी आंसर लिखा होगा और वो लॉजिकल होगा तो उस पर आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है बेटा. हाँ, तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी से गवर्नमेंट की ऐसा भी हो सकता है कि जिन फील्ड में प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर कम करता है, गवर्नमेंट उन फील्ड्स में एक्सपेंडिचर ज्यादा कर लोगों के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा सकती है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाकर वो डिफरेंट फील्ड में करती है, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट कर सकती है. तो दिस वाज मैक्रोइकोनॉमिक्स. नाउ विल मूव ऑन टू वेरी फास्ट मूव ऑन टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन था. वी ऑल नो मिस्टर अरुण जेटली, हु इज नो मोर, वेरी सैड, who is not with us anymore. So who was the finance minister? Arun Jaitley. Second question, India entered the stage of demographic transition after the year 1921. We all know that India entered the second stage of economic demographic transition after 1921. और second stage में क्या हुआ कि हमारा birth rate ज्यादा हो गया because of different developments and डेथ रेट कम हो गया. तो इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी. तो इसका जो आंसर होगा दैट इज डी, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. क्वेश्चन नंबर 20, एज आई फॉरवर्डेड यू 3-4 days earlier as well, unit number 1, and we discussed it many maybe 2 or 3 times. AR questions, assertion and reason, ये मैंने आपको बताया भी था, एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिवीजन वीडियोस में भी, कि assertion और reason में हमने ये देखना होता है कि ABCD 4 आंसर हमारे पास होते हैं. If A and R both correct, A और R जो हैं दोनों करेक्ट हैं और R is explaining A, R is explaining the A which is written above it, then A हो जाएगा उसका सॉल्यूशन. If both are correct but R is not explaining A, तो B आंसर हो जाएगा. A is correct, R is
नॉट करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. True. Suez Canal promoted monopoly control of India's foreign trade by the British. False. तो कौन सा होना चाहिए? A is true, R is false. देखिए, अब आपको लगेगा कि सुएज कैनाल से तो बिजनेस बढ़ा था, सुएज कैनाल से बिजनेस बढ़ा था, मार्केट एक्सेस इजियर हुआ था, लेकिन सिर्फ सुएज कैनाल से ही ब्रिटिशर्स की मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली पावर नहीं हुई थी। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सुएज कैनाल प्रोमोटेड मोनोपोली। सुएज कैनाल did not promoted monopoly, it promoted business, more access, but not monopoly. Monopoly is a big word, there were many other factors. So A is true, but R is false. Answer is B. Sorry, both assertion and reason are true, and reason R is not the correct explanation of assertion. So answer will be B. Now 21. Green Revolution enabled the government to procure sufficient amount of grains to build buffer stock. True. Land sealing and land reforms are the policies adopted under the first phase of Green Revolution. False. C answer हो जाएगा बेटा। 22nd देखते हैं। The economic condition of India in the year 1991 was very miserable. Okay. India received $7 billion as loan from World Bank and IMF. Answer is B. Both are correct, but R जो है वो A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। R जो है वो A का रिजल्ट बता रहा है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये ट्रूथ वो थी, मिजरेबल थी तो क्यों थी, मिजरेबल होने के बाद क्या हुआ ये बता रहा है। तो आंसर इज B. 23rd से 27 तक क्या होगा, हमने एक पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बेसिस पर आंसर करना है बेटा। तो 23rd देखते हैं क्या है। ये पैराग्राफ है रिलेटेड टू रूरल ग्रोथ एंड ऑल दैट। क्वेश्चन नंबर 24 है, द लोन रिक्वायर्ड फॉर मैरिज comes under unproductive purpose. We all know marriage is not a productive, economically productive thing. 24, major change occurred after 69 while India adopted institutional credit approach. Non-institutional तो पहले से ही थी. Then regional rural banks organized and regulate all rural financing activities. False. This is managed by NABARD. 27, small self-help groups in India often work in association with post office. No. Bank yes. NABARD no. All of the above no. So correct answer will be B, bank. Okay. Question number 28, women's health becomes a matter of great concern. Defend the statement with valid arguments. So इसे हम बहुत सारे तरीकों से डिफेंड कर सकते हैं, लाइक women are lagging behind in education, healthcare and economic participation as compared to men. We all know जो सेक्स रेशो है वो 1991 में 1945 था, जो अब 1927 हो गया है। मींस अगर मैन एंड वीमेन का या मेल और फीमेल का रेशो देखें एट बर्थ तो वो था 945, यानी कि 1000 चाइल्ड मेल चाइल्ड देन 945 फीमेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड वी कैन से, जो कि 1991 में था, अब वो 1927 हो गया है। यानी कि अगर बॉय जो है वो एज अ चाइल्ड आर 1000 एट बर्थ, देन गर्ल्स आर ओनली, बेबी गर्ल्स आर ओनली 1927। यानी कि people don't want female or people don't want daughters, although we are saying that we are developing, but it is just into some pockets of India, not all parts of India. And second thing is that women's health is not well taken care of, उस वजह से भी ये रेशो जो है वो कम हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं with data कि this is true. Then green revolution and golden revolution, we all know green revolution was related to wheat, rice and other food grains, whereas golden revolution was related to fruits and vegetables and medicinal plants. Green revolution lead to increase in the production of wheat and rice, whereas golden revolution lead to increase in production of fruits, vegetable, flowers and different medicinal plants. Green revolution made India self-sufficient in the production of food grain,
whereas golden revolution made India a world leader in the production of mangoes and bananas and coconut and all other things. Okay, ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया को फूड सिक्योरिटी मिली और गोल्डन रेवोल्यूशन से न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड ऑप्शंस मिले. क्वेश्चन नंबर 29, concept of casualization of workforce. Casualization of workforce is a process in which employment shift from full time and permanent position to casual or contract position. यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से हम कॉन्ट्रेक्चुअल या शॉर्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं. Casual workers are defined as those who work for others in farm or non-farm enterprises and are paid wages that are daily or periodic in nature. उन्हें वीकली या मंथली वेज मिल जाती है. All daily wage earning employees and some categories of contract employees are casual laborers. Increasing casualization of employment affects the prospects of rural development too. तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस के लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय ना रखकर एंटरप्राइजेस शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय रखती हैं. जब जरूरत होती है हायर कर लिया जाता है, जब जरूरत नहीं होती है उन्हें फायर कर दिया जाता है. तो ये बढ़ रहा है इंडिया में और इससे रूरल डेवलपमेंट अफेक्टेड हो रहा है. अगर ये पूछे कि भाई कैजुअलाइजेशन से रूरल डेवलपमेंट अफेक्ट क्यों हो रहा है या उसका रूरल डेवलपमेंट पर एडवर्स इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जब आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो आप पॉवर्टी लेवल की तरफ तेजी से चल पड़ेंगे. ज्यादा जल्दी आप करके गरीब होने के चांसेस हैं क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होती है. वी कुड हैव यूज्ड ऑल दीज वर्ड्स इन आवर आंसर एज वेल. देन service sector appears to be the most benefited by the economic reform process. Explain the given statement. जितना भी 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं उससे सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हुई है. उसके फेवर में हम क्या बोल सकते हैं? तो नंबर एक तो उसमें ये बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं उसके अलावा भी आंसर्स हो सकते हैं. इस बात को मैं बार बार बीच में बताता रहूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने तो ये लिख दिया, मैंने तो वो लिख दिया. यू मे फील लाइक गिल्टी के आंसर में हमने ये नहीं लिखा जो सर ने बताया था, ऐसा तो कहीं भी आंसर में हम नहीं लिख पाए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, headings can be different, but means the logic or the reasoning should be correct. सबसे पहले तो जब लिबरलाइजेशन हुआ 1991 के बाद तो उसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस आया, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ. जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे आउटसोर्सिंग बढ़ी, सर्विस सेक्टर का इंप्रूवमेंट हुआ. सर्विस सेक्टर में भी सभी सेक्टर्स का या सभी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट था वो सेम रेट से नहीं हुआ. अगर आप देखें तो टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट डेटा कंट्री. मींस डेटा जो है जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं सबसे सस्ता इंडिया में है. इंडिया से सस्ता शायद ही किसी कंट्री में डेटा अब हो एट प्रेजेंट, वो भी सर्विस सेक्टर में आता है, टेलीकम्युनिकेशन. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ट्रेड, ये सब वो फैक्टर्स थे जिनका डेवलपमेंट हुआ. कुछ सेक्टर्स ऐसे थे सर्विस सेक्टर में जिनका डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ. ओके. देन थर्ड लॉजिक इज गिवन. देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था तो आपने 4 ही पॉइंट देने हैं. याद रखिए ये मार्किंग स्कीम में आपने ये चीजें भी नोट की होंगी कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट आपने अपने आंसर्स को ऐसे पॉइंट में ब्रेक कर लेना है सो दैट एग्जामिनर को इजीली देखे कि हाँ भाई 4 नंबर का था, 4 पॉइंट लिखे हैं बच्चे ने, 4 नंबर दे देता हूँ. इससे एग्जामिनर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान होती है. इसी आंसर को देखिए, ये आंसर लिखा हुआ है, इसी आंसर को अगर हम पॉइंट में हटा के और ये नंबर्स हटा के एक साथ एक पैराग्राफ बना के लिख दे तो उसे सही लगेगा, लेकिन हिल भी के चलो 3.5 दे देता हूँ. समझ रहे हैं क्या डिफरेंस पड़ता है कि पूरे नहीं देने मुझे, और इसमें अगर सब ठीक लिखा होगा तो 1 2 3 4 काउंट करके 4 नंबर आपको दे देगा. ये एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस होती है. थर्ड पॉइंट देखते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ आईटी. एडवांसमेंट और इनोवेशन जो आईटी में हुए थे, इंडिया वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ, इंडिया इज एंड वाज एट द फोरफ्रंट, तो उससे भी सर्विस सेक्टर को बेनिफिट हुआ है. आज आप देखिए दुनिया की जितनी बड़ी आईटी टेक कंपनीज हैं या ऑटोमेशन की कंपनीज हैं, उन सबके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं वो इंडिया में है. और फोर्थ एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न, चीप एंड स्किल्ड मैन पावर. जितने अमेरिका में या यूरोप में इंजीनियर 5 साल में तैयार होते हैं, इंडिया में 1 साल में तैयार हो जाते हैं. तो यहाँ पे इंजीनियर्स में कंपटीशन होता है जॉब लेने के लिए. वी हैव गॉट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस इन इंजीनियरिंग. ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी जगहों पे ऐसा है. तो हमारे यहाँ चीप एंड स्किल्ड मैन पावर होती है जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाती है और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ जाती है.
Question number 31 is, does modernization as a planning objective creates contradiction in the light of employment generation? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है मशीन का ज्यादा यूज करना, और हमारा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। तो क्या ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं? पढ़ते हैं, देखिए। Modernization as a planning objective does not contradict employment generation. Rather, modernization and employment generation share a positive relationship in the long run. वो कैसे? Modernization refers to the use of new and modern technology in production process. We all know this. This may make some people lose their job in the initial stages. शुरू में कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, but gradually the use of modern technology and input will raise the productivity and consequently the income of the people, that will further raise the demand for goods and services. तो नंबर एक तो मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा सामान मार्केट में बिकेगा, फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस इंक्रीज्ड डिमांड, मोर प्रोडक्शन आउटपुट विल बी रिक्वायर्ड एंड there will be more job opportunities that will lead to higher employment in the economy, like AD. Hence, both modernization and employment generations are not contradictory but are complementary to each other. ये दोनों contradictory नहीं है, complementary हैं। ओके, इसका और क्वेश्चन क्या है? Two major steps taken by the government on industrial sector front during the economic reforms of 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 में हमने जो स्टेप्स लिए थे, कोई से दो बताने हैं। तो एक तो हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया था, किसी भी टाइप की लाइसेंसिंग अब नहीं थी। पहले क्या था, 1991 से पहले आपने इकोनॉमी को, किसी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना है, बिजनेस चेंज करना है, बिजनेस बंद करना है, तो लाइसेंस लेना पड़ता था। अब वो सब खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या है, पब्लिक सेक्टर के रोल को हमने कम कर दिया, और जो रिस्ट्रिक्टिव इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता था, जो कि पहले 17 थी, अब घट के 3 रह गई। कौन कौन सी? डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट। और नंबर 3, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर दिया। पहले कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड थी, किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि भाई इनमें सिर्फ एसएसआई ने ही प्रोडक्शन करना था, अब वो खत्म कर दिया गया। तो यहाँ 3 पॉइंट हैं, इनमें से कोई से आप 2 लिख सकते हैं, या 1-2 पॉइंट और हैं, उन्हें भी अगर आपने लिखा होगा तो दोज विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। India, China and Pakistan have traveled more than 7 decades of developmental path with varied results. Explain the given statement with valid arguments. इसमें हमने क्या करना है कि जो पिछले इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के डेवलपमेंटल पाथ थे, उन्हें एक्सप्लेन करना है, उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ 3-4 लिखे हुए हैं, 5 लिखे हुए हैं, उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, बट आई जस्ट रीड देम आउट। All the 3 countries were maintaining the same level of low development till 70s, late 70s. Over the last 3 decades अगर हम बात करें तो उन्होंने डेवलपमेंट के डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट किया है। इंडिया ने मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए, यानी कि 1991 तक तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल रहा है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड करते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन उसके बाद भी पॉवर्टी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द लास्ट 2 और 3 डिकेड्स। पाकिस्तान में जो है वो जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ है। उसके रीजन यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फर्स्ट, सरकारें बदलती रहती हैं, कभी भी मिलिट्री का रूल आ जाता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एज वेल। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज में वर्क करते हैं, और जब वहां से पैसे भेजते हैं तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पर एग्रीगेट डिमांड को जनरेट करता है। अब जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, यू कैन रिलेट टू दिस सिचुएशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, और वहां पर भी अभी काम नहीं है, या यहाँ के मुकाबले में कहीं ज्यादा वहां प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो रेमिटेंसेस जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कम हो गई होंगी। और फॉरेन हेल्प जो पाकिस्तान को मिलती थी, उससे भी पाकिस्तान का इकोनॉमी चलता था, लेकिन अब वो फॉरेन एड भी कम मिलने लगी है। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने
सोशलिज्म को और कैपिटलिज्म को मिला दिया है। चाइना ने पूरी कंट्री पर कंट्रोल रखा है, लेकिन विद इन द कंट्री उसने जो कैपिटलिस्ट रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो चाइना हैज, वी कैन से दैट चाइना हैज बीन the most successful economy or the most successful country among India, Pakistan and China in the last 3 or 4 decades, and is the fastest growing economy of the world as well. So this has been, and other logics and other statements will also be accepted as answer. 33rd देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? The present world stands at the threshold of an environmental crisis. Discuss the rationale of the given statement with valid reasons. यानी कि अब इकोनॉमिकली एक हम डिजास्टर पर खड़े हैं, क्राइसिस आने वाली है। के बाद किसी हद तक सही लगती है। उसके लिए इन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि पहले नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड कम होती थी, अब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा होती है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो होती है वो कम हो गई है। बहुत सारी चीजें हैं, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ गया है, रेट ऑफ रीजेनरेशन कम हो गया है। उन सारी चीजों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो लगता है कि नहीं, एनवायरमेंटल क्राइसिस पर हम हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? देयर इज, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी क्या है? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यस, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर आपको काम नहीं मिलेगा, आप बेरोजगार रहेंगे, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होंगे और धीरे धीरे आप पॉवर्टी की तरफ चले जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब नो इनकम, नो इनकम मीन्स हंगर, नो इनकम मीन्स इंडेप्टेडनेस। सो वी कैन से दैट अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं ईच अदर। इसका एक और भी है 33 क्वेश्चन का, वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा, वो देख लेते हैं। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में हमने डिफरेंस बताना था। क्या होता है लेबर फोर्स? लेबर फोर्स में इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर वर्किंग एंड दो नॉट वर्किंग आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क इज लेबर फोर्स। यानी कि लेबर फोर्स का मतलब है कि जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, ये जो काम के लिए अवेलेबल हैं, वो सब मिला के लेबर फोर्स बन जाएगा। और वर्क फोर्स क्या है? जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इकोनॉमी में 10 आदमी हैं, 10 में से 8 को काम मिला हुआ है, 2 काम ढूंढ रहे हैं, तो लेबर फोर्स हो जाएगी 10 और वर्क फोर्स हो जाएगी 8। वर्कफोर्स इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम। जो आदमी उस वक्त काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स में आ जाएंगे, और जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो मिलाकर लेबर फोर्स में आ जाएंगे। लेबर मीन्स मैक्रो, वर्क मीन्स माइक्रो। लेबर मीन्स ऑल, वर्क मीन्स ओनली हु आर वर्किंग। दिस इज द डिफरेंस। ऐसे हमने जैसे 3 नंबर में पूछा एग्जामिनर ने, तो 3 पॉइंट बना के हम उसे टेबुलर फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं। Then, do you think that employment generated in the country is proportionate with the growth of GDP in India? No, we don't think so. Because GDP growth 3.6 से 8% तक रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ 0.39 से बढ़कर 2 और 2.1 तक गया है। 1991 के बाद एम्प्लॉयमेंट किसी हद तक बढ़ा है। सो हम ये बोल सकते हैं, the industrial and the tertiary sector failed to absorb the excess labor from the agricultural sector. Thus, employment generated in the country does not commensurate or does not correlates with the growth of GDP in India. ऐसा नहीं हुआ है। ये इस टेबल के बेसिस पर हमने आंसर देना था। ये देखिए, सॉरी, इस ग्राफ या डायग्राम के बेसिस पे आंसर देना था, वो आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट से लिया गया है। हमारे नोट्स में भी है और ये आंसर हमारी वर्कशीट में भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स, ये क्वेश्चन पेपर एक किसी बाहर की सोर्स से लिया था मैंने, स्टिल 80 to 90% of the question answers you will find in the notes and worksheets of both the books. You can recheck or re-verify this claim of mine. Okay. क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट देखते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर हाईली अक्लेम्ड। फॉल्स। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे अपने काम में। अगर सक्सेसफुल होते तो अब तक गरीबी खत्म हो चुकी होती। ऑल्दो 2 रीजंस आर गिवन। Second is human capital benefits only the owner and not the society. False. Human capital not only the owner but also the society. In general, अगर एक डॉक्टर है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पैसा अर्न नहीं करता है, सोसाइटी के लोगों का ट्रीटमेंट भी करता है।
Fourth is India is one of the most favorable medical tourism destination in the world. इंडिया जो है ये ट्रू है, क्योंकि इंडिया में जो होता है वो डॉक्टर वर्ल्ड क्लास होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं बेटा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो मेडिसिन हैं, जो कॉस्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेवलप्ड नेशंस में रहते हैं और इंडिया में आकर अपना इलाज कराते हैं, तो दिस इज ट्रू. Okay, so this was all about set number A. If still you are not clear about anything, you are welcome, you can ask me any question, any numerical you are not like kind of clear के इसका आंसर क्या होना चाहिए, या सर आपने बताया था हम नहीं समझ पाए, no hesitation, you can just call me and we will solve the question. So this video was for set A. Now next video for set B.